Okay, in question number 7, it says universal sets is the number of students in the class. P is a set student who study physics. C is a set student who study chemistry here. Now they are saying there are total number of students in the class. Universal set means students in the class. So total number of students in the class is 24. Student who study physics is 17. Student who study chemistry are 14 people. 14 students are there and student who study both of these subjects are 9. तो देखो यहाँ पर जो नीचे सेट्स एंड वेन डायग्राम बनी हुई है, एंड दैट वेन डायग्राम देखो इसने कॉमन पोर्शन सबसे पहले फिलअप करा हुआ है, एंड दैट 9 रिप्रेजेंट दिस वैल्यू विच इज अ कॉमन पोर्शन ऑफ कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ. तो ये पोर्शन ओनली फिजिक्स को डिनोट कर रहा होता है. So how many people are taking physics? There are 17 people who are taking physics. So this whole set, this whole circle represents 17 over here. How many people are only physics? So 17 minus 9. 17 minus 9 is equals to 8. तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे 8. और देखो यहां पर दिस होल रिप्रेजेंट स्टूडेंट वो स्टडी केमिस्ट्री. तो बेटा यहां पर हमारे पास टोटल कितना होगा 17, सॉरी 14. दिस होल रिप्रेजेंट 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो ओनली केमिस्ट्री के बच्चे आ जाएंगे. 14 minus 9 is 5. So I'm going to write 5 over here. अब देखो टोटल स्टूडेंट्स 24 हैं और यहां पर हमने किन किन को अकोमोडेट कर लिया अभी तक? हमने 8 + 9 + 5 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर लिया. 8 + 9 + 5 विच इज 22. तो देखो यहां पर कितने बच्चे बच जाएंगे? दिस ओवर हियर इज 24 minus 8 minus 9 minus 5 which is equals to 22 which is equals to 2 over here. तो यहां पर बेटा 2 आ जाएगा. यहां पर ये वो दो बच्चे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पे कर रहे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं अटेंड कर रहे. तो हमने अपनी वेन डायग्राम कंप्लीट करा. कह रहा है फाइंड अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कह रहा है फाइंड अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स? पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. स्टूडेंट्स हु आर इनसाइड इन फिजिक्स एंड नॉट टेकिंग केमिस्ट्री. कॉमन पोर्शन ऑफ फिजिक्स एंड नॉट टेकिंग केमिस्ट्री. तो देखो पी के अंदर this is a portion that is inside P. So I'm just going to right take it. Right take कर लिया इसको मैंने. And outside C is cross tick. So I'm going to cross tick the outside C. Outside C, this one and this one. So which one is a common portion of right and cross? Right and cross का common portion क्या है? The common portion of right and cross is this one, जहां पर right और cross दोनों हैं. और यहां पर कितने कितने स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं? 8. So my answer is going to be 8 over here. Similarly, they're asking you number of elements of P union C complement. तो देखो इनसाइड P के लिए अगेन राइट टिक. C कॉम्प्लीमेंट यानी आउटसाइड C के लिए क्रॉस टिक. आउटसाइड C वाला पोर्शन ये रहा. दिस इज द पोर्शन आउटसाइड C. अब यूनियन मींस एवरीथिंग. जहां पे राइट है, जहां जहां क्रॉस है, सबको हम शेड करेंगे. अभी शेड नहीं करना हमें, यानी ये हमारा इंटरेस्टेड रीजन होगा. ये सारा हमारा इंटरेस्टेड रीजन है. अब इस इंटरेस्टेड रीजन में कितने लोग हैं? 9 + 8 + 2. 9 + 8 + 2. So I'm going to write 19 over here. So the answer for this is going to be 19. Now they are asking two students are picked from the class at random. Find the probability that one student studies both subjects and the other student studies chemistry but not physics. तो देखो दो स्टूडेंट्स पिक कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड कंबाइंड प्रोबेबिलिटी. दो स्टूडेंट्स पिक कर रहे हैं हम लोग.
So find a probability that one student studies both subject. Now, how many students study both subject? There are 9 students. One studies chemistry but not physics. How many students are studying only chemistry? So only chemistry, there are 5 students. Now we have to find out the probability of picking 2 students at random from the class. So total students in the class are 24. So first student that studies both subject is 9/24 और दूसरा स्टूडेंट मैं सेट कर रहा हूं ओनली केमिस्ट्री से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/23, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी स्टूडेंट यहां से सिलेक्ट कर चुका हूं, तो टोटल में से एक कम हो जाएगा, लेकिन ओनली केमिस्ट्री में से कुछ भी कम नहीं होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 5/23. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, और मींस एट, और वी कैन डू वन मोर थिंग, कि पहला स्टूडेंट वी आर सिलेक्टिंग दैट इज स्टडिंग ओनली केमिस्ट्री, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इट्स गोइंग टू बी 5/24, और दूसरा बच्चा बेटा वो बोथ सब्जेक्ट स्टडी कर रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 9/23 हो जाएगी. तो देखो टोटल में से एक कम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी बच्चा यहां पर सेलेक्ट किया हुआ है. तो माय आंसर इज गोइंग टू बी 9/24. इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ऐड कराऊंगा, I'll get the answer 15/192. You can use the calculator for this. अब देखो यहां पर 2 स्टूडेंट्स who study physics are picked at random. आपने 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने फिजिक्स वाले बच्चों में से, तो फिजिक्स वाले बच्चे कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्टडी फिजिक्स? 17. So there are students who are studying physics is 17, and from those who are studying physics, how many of them are studying chemistry? ये फिजिक्स वाले बच्चे हैं 17. इनमें से केमिस्ट्री वाले कितने बच्चे हैं जो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं? देयर आर 9. सो देखो, फ्रॉम फिजिक्स स्टूडेंट्स who are studying chemistry are 9. तो आपने इनमें से सेलेक्ट करना है, और हमारे फेवरेबल इवेंट्स ये वाले हैं, ये फेवरेबल बच्चे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ स्टडी केमिस्ट्री. तो देखो मैंने पहला बच्चा सेलेक्ट करा फिजिक्स में से जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/17. दूसरा बच्चा सेलेक्ट करा फिजिक्स में से जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/16. टोटल में से भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और वो बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है उनमें से भी एक कम हो जाएगा, बेटा यहां पर 8 बच जाएगा. सो माय आंसर ओवर हियर विल बी 9/17 into 8/16, which is 9/34. All right. Now, in question number 8, it says calculate the area of the triangle. ट्रायंगल के एरिया बेटा फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. इस ट्रायंगल की पूरी बेस है 12, और इससे परपेंडिकुलर जो लाइन टॉप पॉइंट तक जा रही है दैट इज गोइंग टू बी अ हाइट. तो बेस 12 हो गई, हाइट 9 आ गई, इट इज गोइंग टू बी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. And part B says AB is 2x plus 3 and height is x plus 5. Base 2x plus 3 दे दी, height 2x plus 5 दे दी. The area of the triangle is 50. Find the value of x, giving your answer correct to 2 decimal place. You must show all your working. तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर इन्होंने हिंट दिया हुआ है. सर क्या हिंट दिया हुआ है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल.
एरिया अगेन हाफ बेस इनटू हाइट होता है, एरिया 50 है, बेस विच इज ए बी 2x+3 और हाइट है x+5। 2 मतलब 50 100, we are going to multiply these values, 2x multiplied by x, 2x squared, 2x multiplied by 5, 10x, 3 multiplied by x, 3x, 3 multiplied by 5 is 15. So I'm going to have the answer 2x square plus 13x, 15 minus 100 is minus 85. अब देखो बेटा, जब भी वो आपसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है हमारे पास, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की निकालनी है, कभी भी वो बोले 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर देना है तो मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश मत करिएगा, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Value of a is a coefficient of x square, which is 2. Value of b is a coefficient of x, which is 13. Value of c is minus 85. Everything along with sign. I'm going to put up these values, show you're working properly. B value is 13. A value is 2. C value is minus 85. Upon 2a, a value is 2. So minus b plus minus 13 square is 169. Now 4 multiplied by 2 multiplied by 85 is 680, प्लस हो जाएगा 680 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अपॉन 2√2 that is 4. So it is going to be minus 13 plus minus under root 849 upon 4. तो देखो बेटा आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, minus 13 plus root 849 upon 4. माइनस 10.534। देखो क्योंकि उसने 2 डेसिमल प्लेस में आंसर मांगा तो पहले मैं 3 डेसिमल प्लेस लिखूंगा और फिर फाइनली बेटा उसको कन्वर्ट करूंगा 2 डेसिमल प्लेस पर, 4.03 एंड माइनस 10.53। अब देखो x क्योंकि एक लेंथ है ना, x यहां पर एक लेंथ है, लेंथ का पार्ट है बेसिकली। अगर मैं x के लिए यहां पर रखूंगा बेटा -10 तो लेंथ नेगेटिव में आ जाएगी। इस वजह से बेटा वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस वैल्यू, ये -10.3। अब हम देखो इसको इग्नोर कर रहा हूं मैं यहां पर। (4.03 is going to be your answer। अगर x के लिए मैं 4.03 लूंगा, इससे मेरी लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी, लेंथ नेगेटिव नहीं आएगी। हाँ, अगर x की वैल्यू बेटा -10.53 रखूंगा तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दिस वन इज प्योरली अ 0580 क्वेश्चन जिसमें ये कैलकुलस थोड़ा पूछता है। they're asking you find a gradient of the graph at where x is equal to 1। ग्रेडियंट बेटा कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें आप। टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व इक्वेशन। डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, f डैश x आ जाता है यहां पर दिस इज गोइंग टू बी पावर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट 1 इन द पावर, पावर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट 1 इन द पावर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। f डैश x, दिस f डैश x कॉल्ड ग्रेडियंट।
और बेटा अगर आप यहां पर एक्स की 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 -6, -3 हो जाएगा। ग्रेडियंट स्क्वायर ऑफ ई -3 है। जैसे ही फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। टर्निंग पॉइंट्स के लिए बेटा याद रखें एफ डैश एक्स को हम इक्वल टू 0 रखते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द एफ डैश एक्स विच इज 3x स्क्वायर -6x इक्वल टू 0। मैंने यहां से 3x कॉमन निकाला, बिकम x -2 इक्वल टू 0। आइदर 3x इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। कभी भी दो ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हो ना तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी x 0 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू 0 आ गई यहां पर, और यहां से बेटा x की वैल्यू 2 आ गई। वंस यू गॉट x वैल्यूज दे नीड द होल पॉइंट, यानी y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो y बराबर है x क्यूब, दिस इज द कर्व इक्वेशन। एफ एक्स का मतलब होता है y। तो y बराबर है एक्स क्यूब -3x² -4। आपने x की जगह 0 पुट करना है सबसे पहले। you'll get y value -4। if we put x equal to 2 over here, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 -12, this is going to be y value is -8। so your turning points और stationary points और vertex point, ये 0 -4 आ गया और एक आ गया 2 -8। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, they're asking you to sketch the graph। अच्छा बेटा, इन ऑर्डर टू स्केच द ग्राफ हमारे पास इस इक्वेशन की क्या क्या चीजें हमें पता है। तो देखो बेटा आपके पास व्हाट वी गॉट ओवर हियर आर दीज टू टर्निंग पॉइंट्स। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। ये दो टर्निंग पॉइंट्स हमें पता है, और अब इन्हीं की बेसिस पर बेटा वी आर गोइंग टू स्केच द ग्राफ। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये समझे बात को कि ये क्यूबिक कर्व है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है। तो ग्राफ कुछ यूं स्केच होगा, जो भी होगा राइट साइड स्लैंटेड ग्राफ होगा। ठीक है ना। अब हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले 0 -4, 2 -8 की हम वैल्यूज को देखेंगे किस तरह प्लॉट कर सकते हैं हम। तो देखो डाउनवर्ड 4 है, 1 डाउनवर्ड 8 स्टेप जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 2 -8 कहाँ होगा। दिस वन इज -8 ओवर हियर, दिस वन इज 2 ओवर हियर। -4 कहाँ होगा, ये लेबल जरूर कर लें। तो देखो मैं यहाँ पर लेबल कर रहा हूँ, 0 -4 एक मेरा पॉइंट है, एंड अदर पॉइंट इज 2 -8। मेरा जो भी ग्राफ बन रहा है वो राइट से स्टैंडर्ड होगा। सो आई एम ड्राइंग अ ग्राफ लाइक दिस। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राफ फॉर दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राफ। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, 3D डायग्राम ऑफ। अब देखो ये हमारे पास एक 3D डायग्राम बनी हुई है, ABCD इज अ क्वाड्रेटल।
AC is 12.3, already mentioned in the question. AD is 6.5, already mentioned in the question. Angle BAC is 31. Angle ABC is 90 degree है. इसका मतलब ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड जा रही है, 90 डिग्री बना रहा है, ये हमारे पास 3D डायग्राम बन रही है. यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है. ये जो बेस ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. कह रहा आप ए बी की लेंथ 10.454 बता दें, निकाल के बता दें दिस ए बी लेंथ ओवर हियर. सो देखो बेटा यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये ऑलरेडी हमें पता चल रहा है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है ना, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. जहां पर एंगल और 90 डिग्री दोनों बनता है, दैट साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट. ये अपोजिट हो जाएगा. ठीक है ना. तो अब हम लोग एंगल का यूज करेंगे साइन 31 अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस. सर आपको अपोजिट में बीसी आएगा, तो बीसी आई कैन नॉट टेक इट. आई डोंट वांट बीसी ओवर हियर, आई वांट ए बी ओवर हियर. तो बेटा मैं कॉस की साइन की जगह यहां पर आई एम यूजिंग कॉस, एंड दिस इज गोइंग टू बी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस. तो देखो एडजेसेंट आपको पता है, नहीं सर आपको नहीं पता, वही तो निकालना है. ए बी की लेंथ हाइपोटेन्यूस इज 12.3, तो 12.3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 31. 10.54 ए बी लेंस इज 10.54. हमें 3 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस प्रूफ करना था, तो पहले मैं इसको 3 डेसिमल प्लेस पे लिखूंगा. लाइक आई वुड राइट 10.543, और फिर इसको 2 डेसिमल प्लेस पे कन्वर्ट करूंगा, 10.54 सेंटीमीटर हुए है. ठीक है. कह रहे शो दैट द एंगल DAC इज 41.80. DAC एंगल कौन सा है ये देखो. DAC दिस इज द एंगल DAC ओवर हियर. अब देखो ये पूरा खुद राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. इफ यू कैन सी के ये देखो हमारे पास पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. सो दिस ओवर हियर इज द एंगल 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड, इट्स कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. दिस इज एडजेसेंट, दिस इज अपोजिट. तो अगर मुझे एंगल मालूम करना है तो बेटा मेरे पास हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट गिवन है. So what I'm going to do, I'm going to find out with the help of cosine rule again, adjacent over hypotenuse, and now I'm going to take the cos inverse. Cos inverse of this value 12.3 divided by 16.5 is 41.801. So 2 decimal place पे 41.80 degree is going to be your answer. ठीक है. पहले 3 decimal place पे लिखा, फिर 2 decimal place में कन्वर्ट किया. Now the length of BD, this BD length over here, अब यहां पर देखो बेटा हमें BD की लेंथ मालूम करनी है, दिस BD लेंथ ओवर हियर. अब BD लेंथ मालूम करने के लिए आपके पास वी आर फोकसिंग दिस ट्राइंगल. ठीक है ना. अब ये वाला ट्राइंगल क्यों फोकस कर रहे हैं, नॉन रेडिकल ट्राइंगल है बेटा ये. इसमें देखो हमें ये लेंथ पता है 16.5, और AB की लेंथ पता है विच इज 10.54. ये हमने AB की लेंथ 10.54 निकाली भी ना.
एंड वी नो द वी वांट द वैल्यू ऑफ BD विच इज x। ये एंगल आधा मुझे पता है और आधा मैंने निकाला हुआ है। 31 देखो मुझे पता है और 41.80 मुझे पता है, हमने निकाल लिया था ये। तो देखो मुझे इस पूरे ट्रायंगल का ये वाला एंगल पता है, इसकी अपोजिट वाली साइड चाहिए। सो आई एम गोइंग टू यूज कोसाइन रूल हियर। मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, फिर नीचे कॉपी कर लूंगा। आई एम गोइंग टू राइट BD square, this BD square is equal to 16.5 square plus 10.54 square, 2 into 16.5 into 10.54 cos of the angle between them। एंगल में 41.80 प्लस 31 डिग्री दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। आई एम जस्ट कॉपिंग डाउन, इसकी स्पेस पर कॉपी कर रहा हूं मैं। So it becomes 16.5 स्क्वायर। इस पूरे को आप BD, इस पूरे को आप रूट में लेंगे, whatever the value is, इस पूरी वैल्यू को निकालें पहले आप। जस्ट पुट इन द कैलकुलेटर 16.5 का स्क्वायर प्लस 10.54 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16.5 इंटू 10.54 इंटू कॉस एंगल इज 41 पॉइंट we'll take the square root of this value। 16.7। अब देखो यहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ कितने डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, तो बेटा यू हैव टू गिव द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने वो 16.7 सेंटीमीटर मैंने इसका आंसर निकालकर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यहां पर दे दिया। कैलकुलेट द एंगल CBD, विच इज CBD एंगल। अब देखो आपके पास यहां पर CBD, दे आर आस्किंग फॉर दिस एंगल, ठीक है ना। अब क्या पिछले किसी सवाल में BC की लाइन निकलवाई हुई है? देखो BD की लाइन तो अभी निकाली ना 16.7। डू वी नो द वैल्यू ऑफ CD और BC? तो यहां पर देखो बेटा हमारे पास सिर्फ BD निकाला हुआ है, एंगल CBD निकालना है। दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट, और यहां के लिए हमें सिर्फ ये लेंथ पता है। तो देखो मैं करूंगा क्या, सिंस यहां पर हमें सिर्फ ये लेंथ पता है और कोई लेंथ पता नहीं है इसको निकालने के लिए, तो हम अगेन बेस ट्रायंगल का यूज करेंगे, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस राइट एंगल ट्रायंगल टू फाइंड आउट दिस BC लेंथ। यानी दिस इज गोइंग टू बी योर अपोजिट, दिस इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूस sin 31 BC ओवर 12.3। तो बेटा आपके पास BC की लेंथ आ जाएगी। विल गेट द BC लेंथ, दैट इज 12.3 into sin 31, it is going to be 6.334। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस। ये देखो मैं बस यहां पर लेंथ लिख रहा हूं 6.334। आई गॉट दिस लेंथ। इसकी वर्किंग मैं नीचे स्पेस जहां है वहां लिख रहा हूं।
नथिंग इज कि देखो बेटा यहां पर इन्होंने अब सी डी लेंथ भी मैं यहां पर निकाल रहा हूं। अच्छा एक चीज याद रखें, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा बिकॉज ये मेंशन नहीं है यहां पर। ठीक है ना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम गोइंग टू फोकस दिस ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो इसकी ये एंगल हमें पता है विच वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट। हमने डी ए सी एंगल निकाला था पहले, दैट इज 41.80। तो बेटा आई एम गोइंग टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां के लिए बेटा आपके पास दिस इज गोइंग टू बी योर हाइपोटेन्यूज, this is adjacent, this is opposite. Since we need to find out the opposite value, I'm using sine 41.80 opposite CD over hypotenuse which is 16.5. So 16.5 multiplied by sine 41.80. तो CD की वैल्यू 10.997 हो गई। So I'm just writing CD values 10.99 और इस वर्किंग को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूं आंसर स्पेस में। Now we know the value of BD which is 16.7। तो बेटा इस पूरे केस में if they are asking you for this angle, I'm going to use cosine rule here because सारी साइड्स पता है। cos थीटा 16.7 का स्क्वायर प्लस 6.334 का स्क्वायर माइनस 10.99 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 16.7 इंटू 6.334। मैं एक आंसर निकालने के बाद आई एम गोइंग टू टेक द कॉस इनवर्स। द आंसर इज 0.937 7008। cos inverse answer is cos inverse, the value of theta is going to be 20.44। कोई लिमिटेशन नहीं है तो 20.41 डेसिमल प्लेस से बेटा आप आंसर निकाल कर दे देंगे। So you got answer 20.4 here. Now calculate the shortest distance from C to BD.
अब सी टू बी डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखो इस बात का मतलब क्या है, सी टू बी डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो आई एम मेकिंग अ लाइन ओवर हियर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सी से बी डी तक एक लाइन जा रही है जो बीडी पर जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, चाहे आप 90 डिग्री यहां बना दो और यू मेक द 90 डिग्री ओवर हियर। So this line C to BD, perpendicular distance, shorter distance, is the value that we have to calculate. अब देखो यहां पर we know the value of BC, which is 6.334. We know the angle theta अभी हमने निकाला हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, अगर मैं इसको फोकस करूं, this triangle is going to be considered as a right angle triangle. इसमें बेटा ये लेंथ अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूस है, this is adjacent, this length over here is adjacent, this is hypotenuse and this is opposite. तो मुझे तो अपोजिट की वैल्यू चाहिए और हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, तो आई एम गोइंग टू राइट साइन थीटा अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करी है 20.4, अपोजिट ओवर एडजस्ट हाइपोटेन्यूज। तो 6 पॉइंट opposite value, that is a perpendicular distance, that is the shorter distance up to 3 cm figure, 2.21 centimeter is going to be your answer for this. Now in question number 11, a question from the functions chapter. There are 4 functions over here in which they are asking j वाले फंक्शन में x2 लिखा हुआ है, they are asking j of -1 क्या है, they are asking j वाले फंक्शन में x ही है, -1 पुट कर दो, ये 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। फाइंड x when f of x plus g of x equal to 0। f of x क्या है 2x - 1 प्लस g of x क्या है 3x + 2 इक्वल टू 0 है। 2x + 3x is going to be 5x, -1 + 2 is +1, 5x equal to -1, x की लो -1/5 आ गई। In next part, C part, they are saying g of gx निकाल के दिखा दें in a simplified form। देखो this is gx function which is 3x + 2। अगर वो डिनोशन में x की जगह gx रख देता है तो हम वैल्यू में x की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 3x + 2, 9x + 8। This is going to be your answer, g of gx in a simplified form। x की जगह वापस से, ये x की जगह वापस से gx वाला फंक्शन ही पुट कर दिया मैंने। दिस इज कॉल्ड g of gx। नाउ कह रहे h of fx निकालो, g of hx निकालो और फिर उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर निकल के दिखा दो सिंगल फ्रैक्शन में। अब देखो h of fx क्या होगा, ये hx वाला फंक्शन है ना 1/x, इसमें फंक्शन ऑफ x इनपुट कर दो, यानी x की जगह फंक्शन ऑफ x लिख दो 2x - 1। देखो यहां पर x की जगह आई एम राइटिंग 2x - 1 फंक्शन ऑफ x।
तो ये एच ऑफ एफ एक्स आ गया। अब कह रहा है जी ऑफ एच एक्स निकालो, व्हाट इज जी एक्स फंक्शन? सर जी एक्स फंक्शन है 3x+2। तो यहां पर देखो मैंने लिखा 3x+2। जी ऑफ एच एक्स क्या होगा? जी वाले फंक्शन में एच वाला फंक्शन इनपुट दे दो। एच वाला फंक्शन है 1/x। तो जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां जी वाले फंक्शन में एच एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एच एक्स की वैल्यू क्या है? 1/x+2। सो दिस इज गोइंग टू बी 3/x+2। अब ये मेरे पास साफ सुथरा लिख देता हूं। अब ये मेरे पास जी ऑफ एच एक्स आ गया। अब देखो एच ऑफ एफ एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स जो उसने बोला हुआ है, तो मेरा ये एच ऑफ एफ एक्स है 1/2x-1, जी ऑफ एच एक्स है 3/x+2। ये तो सिंगल फ्रैक्शन में लिखो। मैंने तीनों का एलसीएम लिया, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2x-1, x और 1 का एलसीएम यही हो जाता है। 2x-1 इंटू एक्स इंटू 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दें। So it will become x into 2x-1। यहां पर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x से मिल रहा होगा तभी एलसीएम बनेगा। तो न्यूमरेटर को भी देखो x से मिला करा दिया, x मिला पे 1 इज x। ये डिनोमिनेटर 2x-1 से मिल रहा होगा तो न्यूमरेटर भी 2x-1 से मिल रहा होगा। ये 1x इंटू 2x-1 से मिल रहा होगा तो न्यूमरेटर भी बेटा x इंटू 2x-1 से मिल रहा होगा। थ्री टू द सिक्स, 3 1 3। 2x मिल रहा है 2x, 4x², 2x मिल रहा है -1 -2x। ये x इंटू 2x हो जाएगा, x इंटू 1 -x हो गया। ऊपर मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 4x², 6x प्लस x 7x, 7x -2x इज 5x -3 अपॉन, ये हमने सिंगल फ्रैक्शन में आंसर दे दिया। थोड़ी स्पेस ज्यादा ले ली हम लोग ने, लेकिन ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा ये 5x होगा, +5x होगा, ठीक है ना। नीचे वाला क्वेश्चन देखने के लिए मैं जरा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। In part E, they are saying when P of P x is x, the Px is a function such that P inverse is equals to Px. Draw a ring around the function that is his property. देखो होता क्या है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। देखो बेटा दिस इज द प्रॉपर्टी एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये दोनों इक्वल्स टू एक्स हो जाएं, यानी एफ का एफ इनवर्स के साथ कंपोजिट होना या एफ इनवर्स का एफ के साथ कंपोजिट होना इक्वल्स टू एक्स के बराबर हो, तो याद रखो बेटा ये तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो।
यानी कभी हो सकता है जब एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एफ एक्स आपस में इक्वल हो, यानी इनवर्स फंक्शन और ओरिजिनल फंक्शन सेम होगा, तभी बेटा ये प्रॉपर्टी प्रूव हो सकती है कि पी ऑफ पी एक्स बराबर है एक्स के। तो हमने सबका इनवर्स निकाला और देखा क्या सबके इनवर्स उनके जैसे हैं। अब ये देखो, मैंने जो ये प्रॉपर्टी आपको बताई है ना, ये इन्होंने खुद ने भी सवाल में बताई भी है, पी इनवर्स ऑफ पी एक्स, पी इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स के, अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है तो किस फंक्शन में प्रॉपर्टी प्रूव हो रही होगी? मैंने देखो यहां पर अगर सबका मैं इनवर्स निकालू ना, y बराबर है 2x-1 के, y बराबर है 3x+2 के, y बराबर है 1/x के, y बराबर है x² के। अगर मैं सबके इनवर्स निकालूं तो उनमें सिर्फ ये वो फंक्शन है जिसका इनवर्स हमारे पास ये सेम ही रहेगा। जैसे मैंने y की जगह x लिखा और x की जगह y लिख दिया। अब मैंने y को सब्जेक्ट बनाया तो y बराबर हो गया 1/x के। तो देखो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन 1/x ही आ रहा है और ओरिजिनल फंक्शन भी 1/x है। तो इसका मतलब बेटा एच ऑफ एक्स को मैं सर्कल करूंगा, ये वो फंक्शन है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है कि जहां पर इनवर्स फंक्शन और उसका ओरिजिनल फंक्शन सेम है। अगर ऐसा होता है तो बेटा कि फंक्शन अपने इनवर्स के साथ कंपोजिट जब करता है तो एक्स आंसर आता है। ये ऐसा तभी होता है। अच्छा, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 दे आर आस्किंग यू टू स्केच द ग्राफ ऑफ 10x। तो स्केच करना है, वी नो दिस के 90 डिग्री और 270 डिग्री पे जो 10 का ग्राफ है ना वो इन्फिनाइट हो रहा होता है। तो मैं ग्राफ कुछ नहीं बनाना है, फिर नीचे से ग्राफ लेकर आके देखो ये बनाया, ये जनरल स्केचिंग है। 180 पे ग्राफ जीरो होता है, अगेन 270 पे जीरो हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। फिर ये डिस्कंटिन्यूस ग्राफ है, वापस नेगेटिव इन्फिनिटी से वापस से 360 पे आ गया, ये हमारे पास 360 पे 10 जीरो होता है। तो याद रखें 10 जीरो पे जीरो होता है, 180 पे जीरो होता है, 60 पे 360 पे जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, 90 पे इन्फिनिटी होता है और 270 पे इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए देखो ग्राफ यहाँ पर यूं जा रहा है, यहाँ पर 90 पे देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये 180 पे ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एंड in the last question part B they're saying find x when at 10x equals to 1/√3 from 0 till 360। तो देखो 0 till 360 का मतलब ये है कि हमारे पास एंगल पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है हमारे पास, यानी x एक ऐसा एंगल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है, क्योंकि x की रेंज जो गिवन है वो पॉजिटिव एंगल की गिवन है। 0 से लेकर 360 तक सारे एंगल क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने बेटा यहां पर क्या करा, हमने बोला यार 0 से लेकर 360 तक सबसे पहले देखो किस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। सर फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। यहां पर अल्फा ये रहा और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो अल्फा ये रहा, फ्रॉम द नियरेस्ट एक्स एक्सिस जो एंगल होता है ना, दिस इज कॉल्ड अल्फा, ये अल्फा है हमारे पास। सेकंड स्टेप में बेटा हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, 10 वर्ड्स 1/√3 करेंगे, इससे एक्स नहीं आएगा, इससे अल्फा निकालेंगे हम लोग। 10 इनवर्स 1/√3 होता है 30 डिग्री। अब हम अपना एंगल एक्स निकालेंगे, एंगल एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हमारे पास देखो ये दिस इज गोइंग टू बी योर एक्स ओ है, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये एक्स बन रहे हैं हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बराबर होता है बेटा अल्फा के, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स बराबर होता है 180 प्लस अल्फा के, यानी मेरी एक्स की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री और 180 प्लस 30 होता है 210, और आंसर इज गोइंग टू बी 30 एंड 180 एंड 210 हेयर। ये बेटा आपके पास दो एक्स की वैल्यूज विद इन 360 निकल कर आ गई। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।